like heart, the diabetes, high blood pressure, smoking, excessive use of alcohol, obesity, sedentary lifestyle, all those contribute to heart disease. And of course, if you want to avoid heart disease, take care of them. So it's very simple that those who take care of themselves have a less chance of developing heart disease. This year is a special message. Particularly, we are in a very unprecedented time of the COVID-19 pandemic, which has affected our life as a person, as an institution, as a country, completely. Clearly, the patients who have heart disease are more prone to develop COVID-19 complications, requiring respirator or even dying. So therefore, it's very important that patients with heart disease take extra precautions to take care of themselves and avoid COVID-19 exposure. Also, another part which we have seen, the patients who are heart disease and they have acute symptoms of their disease, but they don't want to go to the hospital or to the doctor because of fear of getting COVID-19 infection. So our message to all of them is very simple, that yes, if you have stable heart disease, your medical care can be deferred for months till the pandemic is over. But if you have acute symptoms, do not hesitate to seek for medical care because that is very important and maybe life-saving for you. So while we are struggling and fighting this COVID-19 battle, I urge all of you as a physician first to take care of yourself and the patients. Give them the best advice, best treatment. Secondly, as a public, be healthy, take care of your risk factors, and eat right. And of course, we have a lot of free time at this time with COVID-19, less travel, use in yourself. Be healthier, do yoga, do various exercises, and watch what you eat. And I guarantee you, all these factors will lead to reduction in the heart disease for years to come. With best wishes and good luck. The slogan this year had been that use your heart to beat the heartbreak. Thank you. नमस्कार, मैं मंजू शर्मा, चेयरपर्सन ऑफ एटर्नल हॉस्पिटल, आप सबको वर्ल्ड हार्ट डे की शुभकामनाएं देती हूँ। वर्ल्ड हार्ट डे को तो ध्यान में हमको रखना ही पड़ रहा है, पर साथ साथ जो कोविड का जो एक प्रकोप शुरू हुआ है, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात हो गई है। कोविड के चलते लोग बाग की अपनी कोविड का इलाज कराएं या हार्ट का ध्यान रखें, इसमें कहीं हार्ट पीछे छूटता जा रहा है, क्योंकि लोग बाग डर के मारे अस्पताल की तरफ जाते ही नहीं है। पर मैं सबको ये बताना चाहूंगी कि आप इस चीज से निश्चिंत रहें, अगर आपको कोई सी भी दिक्कत हो रही है, आप अस्पताल जरूर जाएं। कोविड का एक दूसरा इम्पैक्ट हो रहा है, अगर किसी को हो जाता है तो उसमें अपनी हार्ट की भी और प्रॉब्लम्स काफी बढ़ रही हैं, तो उसमें जीवन को बचाने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। खाने पीने का तरीका ठीक नहीं है, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, हम लोग स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं। पर मैं सबसे गुजारिश करूंगी कि 30 साल से पहले ही आप लोग अपने फुल बॉडी चेकअप कराइए और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए और हार्ट का ध्यान रखिए, क्योंकि आज जो थीम है कि आप अपने दिल का ख्याल रखेंगे तभी आप दूसरे का भी ध्यान रख पाएंगे। इसमें से बोलना है। मेरा नाम डॉक्टर राजेश प्रकाश है और मैं EHCC अस्पताल का CEO। आज हम वर्ल्ड हार्ट डे पर कुछ बात करने आए हैं। वर्ल्ड हार्ट डे इज अ डे दैट इज फॉर द ओरिएंटेशन ऑफ अ गुड ह्यूमन बॉडी थ्रू अ हेल्दी हार्ट। एक स्वस्थ शरीर के लिए एक स्वस्थ हृदय का होना बहुत जरूरी है। आज का जमाना कोविड-19 का है।
कोविड-19 के जमाने में हम सब जानते हैं कि बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट होते हैं और इस ऑर्गन सिस्टम में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी एक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की अगर हमको देखभाल करनी है तो इसमें कुछ कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो कि हम सबको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी सावधानी जो है वह ये है कि हमको ये ध्यान होना चाहिए कि अगर किसी एक को कोविड-19 होता है तो वह उससे उसके परिवार, उसके सहकर्मी, उसके पूरे वातावरण में फैल सकता है। तो आज की सबसे बड़ी सावधानी क्या है और कोविड-19 की सबसे बड़ी सीख क्या है, वो ये है कि अपने हृदय का ख्याल करना है तो दूसरों का भी ख्याल करना उतना ही जरूरी है। आइए इस वर्ल्ड हार्ट डे पर दिल से अपने और दूसरों के लिए भी सोचते हैं। जो सावधानियां हम स्वयं रखते हैं उन सावधानियों को दूसरों को भी करने के लिए कहते हैं, तभी हम सभी स्वस्थ रहेंगे। Let us pledge to be healthy and to keep everybody else healthy. Have a safe heart, have a healthy life. नमस्कार, मैं देवेश इटरनल हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। मयंक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मयंक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? दिगावर सर, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। यस सर। तो आज का सेशन हम लोग वर्ल्ड हार्ट डे पर है, वो स्टार्ट करने से पहले we welcome on behalf of Eternal Hospital to Mr. Shailendra Sharma, Regional Business Head, Techno Mobile, Dr. Lokesh Sharma, Branch Manager, Jaipur, Mr. Amit Midda, BM Jodhpur Branch, Mr. Chandrasekhar Ojha, State Training Manager, Mr. Mayank Tiwari, Dr. Mayank Tiwari, Marketing Manager, Techno Mobile. We also welcome to Techno Trade Partners to participate in this live webinar on the occasion of World Heart Day. आज का वर्ल्ड हार्ट डे जो है उसको स्टार्ट करने से पहले हमारा एक प्लेस है, तो हम लोग उसमें हमारे और हमारे परिवार के हृदय का ध्यान हम खुद रखें। हमारा दिल हमारे लिए बहुत कुछ करता है, हमें जिंदा रखने के लिए 24/7 धड़कता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपने दिल के लिए कुछ कर रहे हैं? दिल को एक्टिव बनाने के लिए इटरनल हॉस्पिटल विश्व हृदय दिवस के मौके पर दे रहा है इटरनल हेल्दी हार्ट चैलेंज, जिसके अंदर हमें रोज व्यायाम के लिए प्रेरित करना है, अपने आप को सक्रिय जीवन शैली के लिए प्रेरित करना है, स्वस्थ भोजन के लिए प्रेरित करना है, नियंत्रित डाइट के लिए प्रेरित करना है, नियमित हेल्थ चेकअप के लिए प्रेरित करना है। सो आज की टॉक उसी बेस पर है कि हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रेमरतन देगावर, जो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं इटरनल हॉस्पिटल में। टॉक स्टार्ट होने से पहले मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन इटरनल हॉस्पिटल का मैं देता हूं। इटरनल हॉस्पिटल जयपुर 2013 में स्थापित, आज यह न केवल जयपुर में बल्कि विशेष सेवाओं और उत्कृष्ट चिकित्सा परिणामों के कारण नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी इस हॉस्पिटल को लोग जानते हैं। इटरनल हॉस्पिटल जयपुर को दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, हॉस्पिटल नर्सिंग होम सोसाइटी की तरफ से बेस्ट हॉस्पिटल ऑफ राजस्थान के अवार्ड से नवाजा गया है। 250 बेड की क्षमता रखने वाले अस्पताल में अत्याधुनिक तकनीक है व सेवाओं के विस्तार में कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जरी, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्पाइन सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, क्रिटिकल केयर, यूरोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड एंडोक्राइनोलॉजी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। इटरनल अस्पताल में माउंट सिनाई हॉस्पिटल न्यूयॉर्क यूएसए के साथ ज्ञान साझा करने की व्यवस्था है। आपने सुना होगा एनएबीएल और एनएबीएच हॉस्पिटल्स होते हैं, लेकिन इटरनल हॉस्पिटल राजस्थान का एकमात्र हॉस्पिटल है जो कि जेसीआई, ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल से एग्रेडेटेड है,
ये एक यूएसए आधारित संगठन है जो कि जेसीआई जो होता है वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हाईएस्ट बेंचमार्क होता है। यह मान्यता विश्व स्तरीय रोगी देखभाल प्रदान करने और स्वास्थ्य सेवा वितरण में उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए इटरनल अस्पताल के निरंतर प्रयास का प्रमाण है। अब मैं इंट्रोडक्शन देता हूं डॉक्टर प्रेमरतन देगावत जी, जो कि आज के स्पीकर हैं। डॉक्टर साहब डॉक्टर प्रेमरतन देगावत हमारे इटरनल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के। करीब 5 साल से इटरनल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। काफी सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर प्रेमरतन देगावत सर को कि आज की टॉक स्टार्ट करें सर। थैंक यू देवेश। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। आई एम शेयरिंग माय स्लाइड्स। आप स्लाइड देख पा रहे हैं देवेश जी? यस सर, आपकी स्लाइड दिख रही है हमें। आप सब लोगों का स्वागत है इस वेबिनार में। मैं डायरेक्ट आज, क्योंकि काफी वक्त हो चुका है, तो डायरेक्ट अपने टॉपिक पे ही आना चाहूँगा। आज मैं आपसे आपके हृदय के, हार्ट के, दिल के बारे में डिस्कस करूँगा और 3 बातों के बारे में मैं सबसे ज़्यादा फोकस करूँगा। सबसे पहले कि आप हार्ट की प्रॉब्लम को पहचानें कैसे। भी सबसे पहले इलाज करने से पहले तो ये पता भी तो होना चाहिए कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है कि नहीं है। दूसरा है कि अगर हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है तो उसका इलाज क्या है। तीसरा फोकस रहेगा कि भी जब इलाज भी करा लिया तो बचे कैसे, कैसे इससे हार्ट की प्रॉब्लम से बचा जाए। तो 3 चीज़ों पे अपने फोकस करेंगे, अपनी स्लाइड को दिखाएंगे। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि हार्ट का जो है, हार्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। हार्ट का है हार्ट अटैक, जो सबसे आप ज़्यादा सुनते होंगे। हार्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। हार्ट फेलियर भी हो सकता है, वाल्व भी खराब हो सकते हैं, हार्ट की मायोपैथी भी हो सकती है, हार्ट की रिदम पेसमेकर भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आप सुनते भी होंगे वो है हार्ट अटैक। तो अब हम आज बेसिकली इसी पे फोकस करेंगे, क्योंकि हार्ट अटैक पे क्यों फोकस करेंगे कि ये जानलेवा है और पूरे विश्व के अगर डाटा निकालेंगे तो 50% हार्ट पेशेंट जो हार्ट अटैक आया है इनको वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं, वो आधे रास्ते में ही एक्सपायर हो जाते हैं। तो यानी अगर 100 लोगों को हार्ट अटैक आया है तो 50 लोग ही बचते हैं, 50 लोग रास्ते में ही एक्सपायर हो जाते हैं हॉस्पिटल के। तो इसका मतलब है इसकी मोर्टलिटी, इसकी जान की सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़। तो सबसे पहले हमें पहचानना पड़ेगा कि हार्ट की प्रॉब्लम होती क्या है और हम हार्ट अटैक को पहचाने कैसे। तो हार्ट अटैक को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है, सब लोग जानते हैं कि हार्ट अटैक होगा तो सीने में दर्द होगा। तो कौन सा ऐसा सीने में दर्द है जिसको, हर सीने का दर्द क्या हार्ट अटैक होता है क्या? नहीं। हम लोगों में से, आप में से लोगों में से बहुत से लोगों को कभी ना कभी सीने में दर्द तो हुआ ही होगा। तो क्या सब सीने में दर्द हार्ट अटैक होता है? नहीं। सीने में वो दर्द जिसमें एक अंगुली से ना बताया जा सके, मतलब कि मैं अगर ये कहूँ कि यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ हार्ट का दर्द है, यहाँ, तो वो हार्ट का दर्द नहीं होता है। हार्ट अटैक का दर्द पूरे हाथ से या पूरे थंब ऐसे पूरा मुट्ठी बना के रखेंगे ना, तो सीने पे रखें कि दर्द हो रहा है, यहाँ कहीं हो रहा है, एग्जैक्टली लोकेशन नहीं पता है। यानी पूरा सीना, जैसे आप इन चारों इमेज में देखेंगे, चारों ने अपना पूरा का पूरा हाथ सीने पे रखा हुआ है ना। तो एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। यानी अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये दर्द है, ये दर्द है, अगर दर्द की जगह पहचान पा रहा हूँ तो वो हार्ट अटैक नहीं है, ज्यादातर 99% केस में। तो पूरा का पूरा हाथ मेरे सीने पे आ गया है और एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है। और वो दर्द होता कैसा है? वो ऐसा होता है कि जैसे किसी ने आपके सीने पे 10 से 15 किलो का पत्थर रख दिया है। जैसे आपके सीने पर अगर पत्थर रख दे तो कैसा महसूस होगा आपको? बिल्कुल ऐसा लगेगा नहीं, भारीपन हो गया है। तो हार्ट अटैक का दर्द जो होता है वो भारीपन जैसे ज्यादा होता है, यानी पूरा जरा सीना ऐसे जकड़ जाता है। जकड़ने का मतलब होता है कि किसी ने आके आपका सीना जकड़ लिया है, वो दर्द हार्ट अटैक का होता है। वो अगर वो कई कई लोग आके बोलते हैं ऐसा लग रहा है किसी ने हमारा गला पकड़ लिया है, ये कई लोग आके बोलते हैं दोनों जबड़े ऐसे दुख रहे हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है दोनों जबड़ों। तो ऐसा दर्द जिसे दोनों जबड़े दर्द हो, आपका गला जिस ऐसा लगे कि किसी ने दबा दिया हो, सीने पे जैसे लगे कि किसी ने पत्थर रख दिया हो। तो हार्ट का जो दर्द है वो ऐसे बिल्कुल बीच में होता है। हार्ट का दर्द सीन लेफ्ट साइड, जैसे हार्ट लेफ्ट साइड में होता है तो, लेकिन लेफ्ट साइड में हार्ट अटैक का दर्द नहीं होता है, वो बिल्कुल बीचों बीच में होता है।
तो मुझे लगता है कि ये सब बातें अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप पहचान पाएंगे कि भाई मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई, या मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। ये आपकी कैसे मदद करेंगे? सोचिए रात की 2 बजे आप सोए और आपको अचानक नींद आँख खुली और आपको लग रहा है मेरा सीना भारी हो गया है, तो अब आपको वापस नहीं सोना है, जगाना है किसी ना किसी को और हॉस्पिटल पहुंचना है, क्योंकि ये वाले सिम्टम आ गए हैं। तो अगर आप नहीं पहुंचेंगे हॉस्पिटल तो हो सकता है नींद से उठे ही ना दोबारा। तो ये क्लासिकल, इसका हार्ट का अटैक का क्लासिकल सिम्टम है। अच्छा, इस दर्द के साथ अगर स्वेटिंग हो जाए, मतलब पसीना छूटे। अच्छा, पसीना छूटने से क्या मतलब है? पसीना छूटने का, जो हार्ट अटैक का पसीना छूटता है वो ऐसा लगता है जैसे पसीने में नहा गए। मतलब अगर मेरे को हार्ट अटैक है और मुझे पसीना छूट रहा है तो मेरे अगर बनियान निकालूंगा ना तो उसके निचोड़ूंगा तो पसीना निकलेगा, इतना पसीना छूटता है हार्ट अटैक में। ज्यादातर केस की बात कर रहा हूँ, 99%, हर केस की बात नहीं कर रहा मैं। कुछ लोगों में बिना उसके सिम्टम भी हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर। तो ये अगर मेरे साथ अगर सीने में भारीपन है, पसीना छूटा है, खूब पसीना छूट रहा है और भारीपन हो गया है, और ये दर्द अगर मेरे दोनों हाथों में जा सकता है, एक हाथ में जा सकता है, कई बोलते हैं कि लेफ्ट साइड में नहीं, वो राइट साइड में भी जा सकता है, दोनों कंधों में जा सकता है, बैक में जा सकता है, आगे पेट की नाभि से ऊपर ऊपर तक, और यहाँ तक कहीं पे भी हार्ट का दर्द हो सकता है। तो ये सिम्टम है क्लासिकल। महिलाओं में ये थोड़े सिम्टम थोड़े से डिफरेंट होते हैं। उनमें जो भारीपन मैंने बताया ना, जो सीने में दर्द या भारीपन वो कम होता है, बजाय कि उनके स्वेटिंग ज़्यादा होती है, उनको नोजिया वॉमिटिंग होती है, उनको घबराहट होती है, उनका सांस फूलता ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई महिलाओं में अटैक आएगा, हार्ट अटैक होगा, तो उनको लगेगा कि मेरा सांस फूल रहा है, उनको लगेगा कि मेरे को पसीने बहुत छूट रहे हैं, उनको लगेगा घबराहट हो रही है, हो सकता है उनको सीने में दर्द ना हो। तो कई बार हम ऐसे पहचान नहीं पाते हैं कि कोई हमारे घर में कोई महिला है, उसको प्रॉब्लम चल रही है, हम उसको पहचान नहीं पाए, हम तो सीधा सा बोलते हैं तुमको घबराहट हो गई है, तुम्हें तो बेचैनी है, एंजाइटी है। तो उन पे भी ध्यान देना जरूरी है। पूरे वर्ल्ड में ये देखा गया है कि जो महिलाओं में हार्ट अटैक होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। खतरनाक हार्ट अटैक नहीं है, खतरनाक उसका इग्नोरेंस है। एक तो खुद ही इग्नोर करती है, दूसरा उनके सिम्टम थोड़े से डिफरेंट होते हैं, हम नहीं पहचान पाते, और तो इसी कारण हार्ट अटैक महिलाओं में खतरनाक बनता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, उनके सिम्टम को भी पहचानेंगे, तो उनकी जान भी हम पुरुषों के बराबर बचा पाएंगे। तो ये सिम्टम है जो आपको पहचानने हैं। आप अपने घर में, रिलेटिव में, पड़ोसी में, सबको ऐसा देख के आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि हाँ आपको प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये तो बात रही सिम्टम की। अब ये हार्ट करता क्या है, हार्ट का काम क्या है सीने में? हार्ट पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है, जैसे कि पूरे दिमाग को देता है, हाथों को, लीवर, गुर्दा, लंग्स, सबको ब्लड सप्लाई करता है। तो हार्ट का काम है पूरे शरीर को सब ब्लड सप्लाई करना। ये जन्म के पहले से धड़कता है और जन्म के मृत्यु तक धड़कता ही रहता है, ये कभी बंद नहीं होता। अगर हार्ट धड़कना 5 मिनट बंद कर दे तो आदमी की परमानेंट मृत्यु हो जाती है। तो ये हार्ट अटैक है क्या? बेसिकली हार्ट अटैक क्या होता है? तो जैसे कि मैंने बताया कि हार्ट पंप कर रहा है, पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई दे रहा है, पर हार्ट को खुद को भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए। पूरे शरीर को खून दे रहा है, खुद को भी तो खून चाहिए। तो खुद के खून देने की 3 नलिकाएं होती हैं हार्ट के पास, जिसको राइट साइड में राइट कॉर्नरी आर्टरी बोलते हैं, एक लेफ्ट में लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी होती है, एक L6 होती है, LAD और L6। तो 3 नलिकाएं होती हैं जो हार्ट को खुद को सप्लाई करती है। जब इन नलिकाओं में, जैसे कि मैंने इस पार्ट को बड़ा करके दिखाया है, ये अगर कोलेस्ट्रॉल जमा होकर नलिकाएं बंद हो जाती हैं हार्ट की खुद की, तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। जैसे कि इसमें यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल से ये नलिका बंद हो गई, तो ये काला वाला, ये ब्राउन ब्राउन हो गया हार्ट, तो इसका मतलब ये वो हिस्सा खराब हो गया है। तो हार्ट अटैक क्या है? हार्ट की खुद की नसों का 100% बंद हो जाना कोलेस्ट्रॉल की वजह से। ठीक है साहब? अब हम बात करेंगे कि ये तो मैंने बताया कि ये कोलेस्ट्रॉल जमा, तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या है और क्यों जमा हो रहा है? नॉर्मली अगर हम देखेंगे, ये हार्ट है और ये हार्ट किसी की नॉर्मल इंसान की नस है हार्ट की। ये एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल के जमा होने, यानी हमारी लैंग्वेज में हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कोलेस्ट्रॉल का जमा होने का प्रोसेस। तो जैसे ये वाले में अगर 50-60% ब्लॉकेज है, ये वाला 70-80% है और ये 90% ब्लॉकेज है। जब ये 90% होके 100% बन जाता है अचानक से, तो हार्ट अटैक होता है। ये एक एनिमेशन दिखा रहा हूं मैं, ये हार्ट की वही नस है
जिसमें आप देखेंगे ये कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल जमा होते होते इतना जमा हो गया कि एक हार्ट की अंदर की नस फटी, अंदर की नस फटी तो उसमें कोलेस्ट्रॉल ब्लड जमा हो गया, ब्लड जमा हो गया तो उसने हार्ट अटैक बंद कर दिया, हार्ट अटैक कर दिया क्योंकि आगे ब्लड जाना बंद हो गया। तो यही हार्ट अटैक का कारण है। ये एक इमेज में आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कई बार हमें कोलेस्ट्रॉल दिखता नहीं है बाहर। हमारी एंजियोग्राफी, एक एंजियोग्राफी है, ये हार्ट की एक नस है जो मैंने आपको दिखाई एनिमेशन में, रियल टाइम नस है। तो हम कई बार कोलेस्ट्रॉल को हमारी एक सोनोग्राफी प्रोसेस से भी हम कोलेस्ट्रॉल को देख लेते हैं। जैसे कि इसमें हमने सोनोग्राफी की है तो ये कोलेस्ट्रॉल हमको मिल गया। तो हमारे पास ऐसी टेक्निक है जिसको इसको हम आईवस बोलते हैं। ये हार्ट की नसों का कोलेस्ट्रॉल देखने की एक विधि है। एक विधि हमारे पास और है जिसको हम बोलते हैं ओसीटी। ये भी हार्ट की नसों का कोलेस्ट्रॉल देखते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ये इसने हार्ट की नस में ये कोलेस्ट्रॉल ओसीटी के द्वारा हम देख लेते हैं। कई बार कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जिनके सिम्टम कुछ नहीं होते हैं, एंजियोग्राफी भी नॉर्मल होती है, लेकिन फिर भी दिक्कत आती है तो हम उनकी एंजियोग्राफी के अंदर माइक्रोस्कोपिक जांच करके देख लेते हैं कि हमें दिख नहीं रहा हो तो इन मशीनों से, इन ओसीटी से हम उनका कोलेस्ट्रॉल चेक करके उनका इलाज कर सकते हैं। तो ये ओसीटी और आईवस दो चीजें हैं जो हार्ट की नसों का कोलेस्ट्रॉल देखती हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि कोलेस्ट्रॉल जमा होना एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस का क्या मतलब है कि भाई अगर ये नॉर्मल इंसान की है तो 90% जो ब्लॉकेज होगा वो मेरे 90 साल में आएगा। जब मैं 80-90 साल का हो जाऊंगा तो मेरे हो सकता है कि 80-90% ब्लॉकेज उम्र के हिसाब से होगा ही ना, बीमारी तो सबको हो गई। 40-50 जो परसेंट ब्लॉकेज है हो सकता है मेरी 50 साल में 40-50% ब्लॉकेज हो। जब मैं 70 साल का हूँ तो हो सकता है 60-70% ब्लॉकेज हो। तो ये नेचुरल चीज है। पर प्रॉब्लम कहाँ है? नेचुरल चीज से प्रॉब्लम क्यों हो रही है? प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि ये जो प्रोसेस 90 साल में होना था यहाँ से यहाँ तक, वो आजकल 40-50 साल में ही हो रहा है। यानी 50 साल में पूरा 90 साल का काम हो जा रहा है। वो क्यों हो रहा है? वो सब हमारी अपनी ही गलती की वजह से। हमारा कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, हमारा इनएक्टिविटी है, हम खाना पीना बाहर का खाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम हमारी है। अगर हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर ले तो ये जो यहाँ से 90 साल पे हम पहुंचेंगे, हम आराम से जिएंगे, हमें कोई अटैक नहीं होगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रॉब्लम सिर्फ हमारी है। ये मैं एक आपको एंजियोग्राफी दिखा रहा हूँ कि जो अटैक हो जाते हैं उसका इलाज कैसे किया जाता है। जैसे कि आप इस एंजियोग्राफी में देखेंगे, ये एक मरीज है जिसकी हार्ट की ये वाली नस यहाँ पूरी जाती है तो 100% बंद हो गई, यानी उसका नस कट गई है। इसी नस को जब हमने ठीक किया तो ये इस तरह की पूरी नस, यही नस है इसी पेशेंट की, तो इसको हमने इधर किया तो ठीक होके पूरी नस हमने खोल दी। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको एक जाली, सॉरी, तो ध्यान से देखेंगे तो एक जालीनुमा चीज दिख रही है। जालीनुमा चीज है ये स्टेंट होता है जो हमने इसी पेशेंट के लगाया है। तो जब हार्ट अटैक हो तो 100% नस हो तो उस नस को खोल के उसमें स्टेंट लगाया जाता है। यही हार्ट अटैक का सबसे बढ़िया और पुख्ता इलाज है। तो इसको हम एंजियोप्लास्टी, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। सभी को करानी चाहिए अगर जिसको हार्ट अटैक आया हो। कई बार कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल इतना हार्ड हो जाता है कि जिसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। तो सॉरी, हमारे पास एक ड्रिल मशीन है जिसको हम रोटा एब्लेशन बोलते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल, जो पीला पीला कोलेस्ट्रॉल आपको दिख रहा है, ये इतना हार्ड, जैसे कि आप देखेंगे इसमें ये इतना हार्ड हो गया है कि किसमें कुछ स्टेंट भी नहीं लग सकता, बैलून भी लग सकता। कई बार कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको कोई सब बोल देते हैं कि इनका कुछ नहीं हो सकता, स्टेंट नहीं लग सकता, या बैलून नहीं हो सकता, या बाईपास भी नहीं हो सकती। तो हम उसको रोटा एब्लेशन से उनकी ये हार्ड कोलेस्ट्रॉल को ठीक करके हम उसमें स्टेंट लगा देते हैं, मरीज की जान उससे बच जाती है। तो ये रोटा एब्लेशन की टेक्निक है। ये तो एक एनिमेशन है। इसका रियल टाइम देखेंगे तो ये रियल टाइम उसका वीडियो है जिसमें ये वाली मशीन होती है जिसको हम मरीज का हार्ट का कोलेस्ट्रॉल को ठीक करते हैं ड्रिल मशीन के द्वारा। ये तो बात रही कि उसका इलाज क्या है। अब ये है समझिए कि आप कहीं बाहर खड़े हैं, सड़क पे खड़े हैं, कहीं शादी पार्टी में खड़े हैं और आपके सामने कोई सीने में दर्द का मरीज है, वो अचानक से बेहोश होकर गिर गया। तो अब आप क्या करेंगे? ज्यादातर हम लोगों की आदत होती थी कि पहले, ज्यादातर मैंने देखा भी है कि सब लोग उसका मुंह खोल के पानी पिलाने की कोशिश करते हैं। तो वो काम कभी नहीं करना है। हमें क्या करना है, अगर हम कर सकते हैं, हमें कुछ ट्रेन कर सकते हैं या हम कुछ सीख सकते हैं, तो है सीपीआर, जो हम लोग सभी को बताते हैं कि जो पेट के ऊपर का और सीने के नीचे का हिस्से का दोनों हाथों से ऐसे हाथ करके और उसको 1 मिनट में 100 बार दबाना है। 1 मिनट में 100 बार दबाना है। और कब तक दबाना है? जब तक मरीज हॉस्पिटल ना पहुंच पाए, या कोई हॉस्पिटल पहुंच जाए,
या फिर कोई ट्रेन आप किसी डॉक्टर के पास पहुंच जाए या कोई नर्सिंग स्टाफ आ जाए, ट्रेन पर्सनल आ जाए, तो ऐसे करके हम मरीज की जान बचा सकते हैं, हार्ट अटैक वाले मरीज की जो बेहोश हो चुका है। तो एक तरीका है, इसका हम कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहिए, ये तो सब बातें थी कि कैसे हार्ट का इलाज किया जाए, कैसे उसको ट्रीटमेंट हो, कैसे पहचाने। अब एक ही हार्ट की प्रॉब्लम हो ही ना, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे साहब ज़्यादातर बातें तो आप सबको पता है, इसमें अच्छी नींद आनी चाहिए 7-8 घंटे की, 7-8 घंटे खूब सोएं अच्छा सा, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। ज़्यादातर जो यंग है ये उनका आदत है कि हम बाहर का ही खाना है, घर का खाना ही नहीं है। बाहर की कचौड़ी, समोसा, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इन सब का ज़्यादा सेवन करते हैं, उनको अवॉइड करें। घर की जो ताज़ा है सब्जियां हैं या फ्रूट है, उनका सेवन ज़्यादा करें, ज़्यादा फल खाएं, सलाद ज़्यादा खाएं, सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें। अच्छा चले, चलने का मतलब होता है ब्रिस्क वॉक। चलने का दो तरीके से चल सकते हैं आप, एक तो होता है कि पैदल चलना, एक होता है ब्रिस्क वॉक करना। तो ब्रिस्क वॉक और पैदल चलने में डिफरेंस क्या है? पैदल चलना बोलते हैं टहलने को, तो टहलना काम नहीं करता है जब तक आप आधा घंटे में 3 से 4 किलोमीटर नहीं चलेंगे लगातार, तब तक उसका टहलने का फायदा नहीं है। बहुत से लोग हैं, मेरे मरीज भी कई बार मुझे बोलते हैं कि सर अब तो 5 किलोमीटर चलते हैं, लेकिन चलते कैसे हैं? वो बस धीरे धीरे चलते हैं, उससे फायदा नहीं होता है। फायदा कैसे होगा? जब जब आप आधा घंटे में 4 किलोमीटर चल लें, यानी शरीर को, हार्ट को लोड आए, पसीना छूटे, सांस फूले, खूब एनर्जी बर्न हो, तब जाके फायदा होता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू लेते हैं, तो उसको अवॉइड करें। किसी भी तरह का तंबाकू हो उसको अवॉइड किया जाए। तंबाकू क्या करता है बेसिकली, आपने कई बार सुना भी होगा कि 20-30 साल के लड़के होते हैं या मजदूर लोग हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल का कहीं नाम नहीं होता है, उनमें भी अटैक आ जाता है। और आपने सुना भी होगा 30-40 साल का लड़का है, कुछ नहीं करता था, लेकिन दिन भर स्मोकिंग करता था, अटैक आ गया। तो स्मोकिंग क्या कर रही है? जैसे कि मैंने बताया, ये नॉर्मल है और ये 90% ब्लॉकेज है। अटैक किसमें होगा? 90% वाले जब 100% में होगा। कब होगा? जब हो सकता है 80-90 साल में और 50 साल। लेकिन जो ये मजदूर हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल का कहीं नाम नहीं है, जो जवान लड़के हैं जिनमें बिल्कुल दुबले पतले हैं, लेकिन दिन भर स्मोकिंग करते हैं, तो क्या कर रहे हैं? ये 50% ब्लॉकेज है ना, इसी को फाड़ के उसमें अटैक बना दे रहे हैं। तो स्मोकिंग क्या करती है? ये छोटे मोटे ब्लॉकेज को फाड़ के उसमें अटैक बनाती है, और उन मरीजों को भी अटैक हो रहा है जिनमें कोलेस्ट्रॉल बहुत कम था। तो ये इन कोलेस्ट्रॉल का कारण, ये हार्ट अटैक का कारण बन रहा है स्मोकिंग। तो हमें छोड़ना है। हमें अगर शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक करें, दवाई मेडिसिन टाइम पे लें। कोई भी मेडिसिन जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की उसको टाइम पे लेते रहें। स्ट्रेस से दूर रहें। किसी भी तरह का स्ट्रेस है वो बहुत ही खतरनाक होता है। अपना माइंड को लेवल को सेटअप रखें, अपना काम पे ध्यान रखें, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों को, जैसा कि सारी चीज़ें मैंने बताई, आप सबको अडॉप्ट कर लेंगे, सब चीज़ों का आराम से ध्यान रखेंगे, तो आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और अगर आपको प्रॉब्लम, आपके हार्ट ठीक रहेगा, तो आपको भी आप भी स्वस्थ रहेंगे और आप एक लंबा जीवन, स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। इन सब चीज़ों के साथ मैं अपना ये वेबिनार कंक्लूड करता हूँ। और आपको कोई क्वेरी हो या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछें। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। एंड एक बार सर इसको शेयर स्क्रीन को हटा दीजिए सर। 1 सेकेंड। एक सवाल है सर, हाउ टू मैनेज हार्ट प्रॉब्लम्स इन कोविड टाइम। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है और वो हॉस्पिटल नहीं आ पा रहा है, तो अपन टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन तो दे ही रहे हैं, लेकिन उसको अगर अचानक प्रॉब्लम है तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर दो दो तरह का प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, एक तो वो मरीज जिसको कभी हार्ट की प्रॉब्लम रही नहीं, और दूसरा वो मरीज जिसको हार्ट की प्रॉब्लम हुई और उसका इलाज हो चुका है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि जैसे कि मैंने समझाया, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम रही ही नहीं कभी और उसको क्या हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, जैसे मैंने सिम्टम बताए थे कि अचानक से सीने में भारीपन हो गया है, तो उस मरीज को टेलीमेडिसिन की तरफ नहीं ध्यान देना, उसको हॉस्पिटल जाना ही है। अच्छा, दूसरा मरीज जो है, उसको, जिसका हार्ट का इलाज चल रहा है, लेकिन अब कोई उसको हार्ट की अटैक नहीं हो रहा है, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है या कोई सांस फूलने की प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, वो मरीज अपना टेलीमेडिसिन से अपना ट्रीटमेंट ले सकता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो हार्ट के मरीजों को टेलीमेडिसिन से
थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए और हो सके तो डॉक्टर को पर्सनली दिखाना चाहिए, क्योंकि इसमें ECG का रोल है, इसमें पेशेंट को देखने का बहुत बड़ा रोल है। तो टेलीमेडिसिन से भी इलाज करा सकते हैं, लेकिन आपके सिम्टम पे डिपेंड करता है कि आपको सिम्टम किस तरह के हैं। यस सर, अभी मैंने सभी को ओपन किया हुआ है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। आपकी कोई क्वेरी हो तो एक बार आप, किसी का कोई सवाल है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके और डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर, माई सेल्फ उमेश चौधरी। मेरा एक क्वेश्चन था सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके चेस्ट पेन होता है, बट वो जब ECG करवाते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं और वो उसकी हार्ट से रिलेटेड जो भी टेस्ट होते हैं वो करवाते हैं, तो उस समय पाया जाता है कि उनको गैस की प्रॉब्लम थी, नॉट रिलेटेड फॉर द हार्ट। तो उस समय एक पेशेंट एज ए पेशेंट वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि इतनी मतलब जो गैस की प्रॉब्लम और हार्ट की प्रॉब्लम में दोनों में डिफरेंशिएट क्या क्या रहेगा उस समय? आपने शायद मेरे साथ लेट जुड़े हैं। मैंने सबसे पहले मेरी स्लाइड ही इसी बात पे थी कि हार्ट की प्रॉब्लम को पहचाने कैसे। आप थोड़ा लेट जुड़े हैं, तो फिर भी मैं दोबारा उसको रिपीट करता हूँ कि हार्ट का दर्द होता है वो कैसा होता है, वो सीने में भारीपन जैसा होता है और उसमें पसीना छूटता है खूब सारा, और वो दोनों कंधों में रेडिएट कर सकता है, जबड़ों में आ सकता है, गले में आ सकता है, और जैसे ही आप चलने लगेंगे वो दर्द बढ़ता है। तो आपके ये सिम्टम है तो ही हार्ट की प्रॉब्लम है। हर हार्ट का दर्द हार्ट अटैक या हर सीने का दर्द हार्ट से रिलेटेड नहीं होता है। तो ये सिम्टम आपको पहचानने हैं। ठीक है सर? ओके सर, थैंक यू। कोई और सवाल अगर पूछना चाह रहे हैं तो समय का थोड़ा अभाव है, थोड़ा आप पूछ लीजिए। आप 2 सवाल और हम ले सकते हैं। ओके सर, गुड इवनिंग। अजय शर्मा बोल रहा हूँ सर, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। मेरा एक सवाल कि कभी कभी क्या होता है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं जैसे खाना खाया या दोपहर की बात है, कभी भी चल भी रहा हूँ, अचानक से जब मैं सांस लेता हूँ, जब मैं अंदर की तरफ सांस खींचता हूँ, तो मुझे एक पेन होता है बीचों बीच, चेस्ट के बीचों बीच में। फिर वो पेन ऐसा होता है कि मैं पूरी सांस भर नहीं पाता हूँ, फिर मैं रुक जाता हूँ। उसके बाद में फिर मैं धीरे धीरे सांस लेता हूँ। जैसे जैसे मैं सांस अंदर भरना स्टार्ट करता हूँ, वो दर्द बढ़ता जाता है और फिर मैं रुकता हूँ। फिर धीरे धीरे 2 मिनट 3 मिनट के बाद में मैं प्रॉपर सांस ले पाता हूँ, जब वो दर्द मेरा कम होता है। तो ये क्या सिम्टम्स होगा? ये हार्ट के सिम्टम बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके हो सकता है कोई पहले कभी आपका लंग्स का कोई ट्रीटमेंट हुआ हो, उससे हो सकता है, कहीं बोन की प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट का सिम्टम बिल्कुल भी नहीं है। ओके, थैंक यू डोंट वरी। सर मेरा भी एक सवाल है, मैं चंद्रशेखर बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि एक डायबिटिक पेशेंट को अपने कोलेस्ट्रॉल को किस प्रकार कंट्रोल वो कर सकता है, या क्या उसके नुस्खे क्या हो सकते हैं? क्या खाना ऐसा खाना चाहिए या और क्या करना चाहिए? डायबिटिक पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा डीरेंज होता है। तो सबसे पहले कि अपना कोलेस्ट्रॉल को, अपने जो शुगर है उसको मेंटेन रखें। ठीक है? हेल्दी एक्टिविटी स्टार्ट रखें, मतलब आधा घंटे में 3 से 4 किलोमीटर चलें। ठीक है? खाने पीने में थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा, आइडियल वेट बनाना पड़ेगा। अगर आपकी हाइट सेंटीमीटर में जितनी भी, उसमें से 100 निकाल देंगे तो उसका आपका आइडियल वेट हो जाएगा। मान लीजिए आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर है, तो आप 100 निकालेंगे तो 50 केजी आपका आइडियल वेट है। तो आइडियल वेट बनाए रखें ये। और जैसा कि मैंने बताया, स्मोकिंग और किसी भी तरह के तंबाकू से दूर रहेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है इसमें आइडियल वेट मेंटेन करना, क्योंकि आप अगर वेट मेंटेन नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहेगा। तो कोशिश करिए वेट किसी से भी कम करिए, चाहे कम खाना खाइए, चाहे सलाद खाइए, फ्रूट खाइए, लेकिन वेट इसमें मेंटेन करिए। यही तरीका है। मेरा एक क्वेश्चन है। आई एम प्रोफेसर IP जैन। आई हैव वन क्वेश्चन। बोलिए। I have got a heart attack from 1993 with ASMI, and I had a angioplasty in Escort Hospital. And then 2006, I had five stent in my heart from Santopa Dullabji. And in 2018, I have 5 stent in my small arteries by Professor Anup Jain.
So now I'm normal, but what precaution I have to take now with my state of heart? So आप बोल रहे हैं 2 बार 5 स्टेंट लगे हैं? हाँ, एक बार मेन आर्टरी में 5 लगे और बाद 2018 में स्मॉल आर्टरी में 5 लगे स्टंट। 5 तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हो गई हो। 5 स्टेंट स्मॉल आर्टरी में कहाँ से लगेंगे? फिर भी चलिए कोई बात नहीं, मान लिया कि लगा है। अनूप जैन एंड पार्टी एसएमएस हॉस्पिटल से, उनसे मैंने कहा था कि आई नीड सम ब्लड फ्रॉम माय वॉकिंग, सो दे इंट्रोड्यूस स्टंट इन माय स्मॉल आर्टरीज, मेन आर्टरी की ब्रांच में। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको स्टेंट लगे हैं तो आप पूछना चाह रहे हैं कि मैं क्या ऐसा काम करूं कि मेरे स्टेंट चलते रहे, तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने जो मेडिसिन उन्होंने डॉक्टर साहब ने दिए है ना, वो टाइम पे लेते रहें। एस्पिरिन का टैबलेट है, वो जिंदगी भर चलता है, उसको मत छोड़िएगा। अपने कोलेस्ट्रॉल को टाइम पे मेंटेन कराते रहिए, चेक करते रहिए। तंबाकू का सेवन मत करिएगा। आधा घंटे में 3 से 4 किलोमीटर की कोशिश करिए। खाने पीने से ऐसा खाइए जिससे आपका वजन ना बढ़े। तो ये 5 चीजें हैं, आप अगर करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी। हेलो सर, मसीह अहमद बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। सर, ये जो कहा जाता है तेल चिकनाई से दूर रहें, तो देसी घी खाते हैं या डालडा खाते हैं या तेल खाते हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कितना लेना चाहिए और कितना नहीं लेना चाहिए? भाई देखिए, तेल घी और जो चीज है ये हमारे इंडियन कल्चर में तो हजारों साल से चल रहा है ना। राइट सर, है ना। आपने गांव में जाएंगे तो सारा दिन वो दूध घी खाते हैं, तो क्या जी बीमार सर। सब बीमार है क्या? जी नहीं सर। तो बीमार कौन है? हम लोग। क्यों? हम खाते तो उतना ही है गांव वाले जितना, जी, तो काम उसके बराबर नहीं करते। ओके ओके। तो आप खाइए, लेकिन काम उसके बराबर करिए जो भारत में जो खेत में काम कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मत खाइए, यही प्रॉब्लम। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और कोई सवाल है या फिर हम लोग अभी हेलो सर, गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग, प्रहलाद गोस्वामी बोल रहा था सर। हाँ बोलिए। अब हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे। जी सर बोलिए। यस सर, यस सर। सर मेरे सर खुद की एक प्रॉब्लम है सर। पिछले अभी ये 2-2.5 महीने से मेरे साथ हो रही है सर। और अभी बीच में मेरा कुछ ट्रीटमेंट भी हुआ था, उसमें मैं 8-10-25 एक टेबलेट ले रहा हूँ, जो आई थिंक उसकी बीपी की है। तो सर मेरा ये होता है कि जब कभी अभी बीच में 15-20 दिन सही था, बट कल से वापस ये होने लगा सर कि जैसे मैं शाम या सुबह अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ, ऐसा लगता है कि मेरा हाथ पैरों में थोड़ा सा जैसे कंपन सा रहता है और मुझे लगता है कि मैं कहीं गिर ना जाऊं। तो सर ये क्या सिम्टम्स है, किसका सिम्टम्स हो सकता है सर? हाथ पैर में और वो गोली में लेता हूँ 8-10 उससे ठीक हो जाता है? मतलब सर कह सकते हैं थोड़ी सी हेडेक सी रहती है सर, हेडेक सी कह सकते हैं सर, हेडेक सी। तो ये तो आपके जो सिम्टम है हार्ट रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके सिम्टम एंजाइटी, उसके सिम्टम मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं। एटेन भी एक ऐसी टेबलेट है जो आपके हार्ट को दूर करती है। तो आप एक अच्छे फिजिशियन को दिखाएं, आपका इलाज हो जाएगा। हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बाकी अगर देगावत सर को किसी को कंसल्ट करना है, ऑनलाइन भी हमारे यहाँ पर टेलीमेडिसिन के थ्रू कंसल्टेशन दी जा रही है, क्योंकि कोविड टाइम में काफी लोग आ नहीं पा रहे हैं हॉस्पिटल डॉक्टर्स को दिखाने के लिए। तो इटर्नल हॉस्पिटल की जो वेबसाइट है उसके सबसे टॉप पर टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन के नाम से एक रेड कलर का बटन है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में एक फॉर्म टाइप का खुलेगा। आप उसमें डिटेल्स फिल कर दें और डॉक्टर देगावत सर का नाम डाल दें देगावत सर को दिखाने के लिए। बाकी मल्टी स्पेशलिटी हमारा हॉस्पिटल है, तो जिस भी डॉक्टर को दिखाना है डॉक्टर का नाम आप डाल करके उसको सबमिट कर दें। डॉक्टर के कोऑर्डिनेटर का कॉल आपके पास में आ जाएगा कंसल्टेशन के लिए। सो नाउ अभी हम लोग आगे बढ़ाते हैं और मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर शैलेंद्र शर्मा, रीजनल हेड राजस्थान एमपीसीजी एंड कर्नाटका। मिस्टर शैलेंद्र शर्मा जी। Hello, good evening everyone. Thank you very much. So first of all, I would like to thank you, entire Eternal Hospital, especially Dr. Prem Ratan Degawat ji. Thank you so much, Dr. Saab. So really, Dr. Prem sir has really explained in a very good way and how to taking care of the heart in this COVID era. So thank you so much. And also I would like to thanks to entire marketing team of Eternal Hospital and also techno marketing team. Thank bro.
So thanks a lot for organizing such a live session in a very good way. So really very good inputs received from Prem sir. So thank you, Dr. Saab. Thank you very much. Thank you, everyone, all participation. Thank you so much. Thank you so much, sir. And next, I would like to invite to Dr. Mayank Tiwari, Marketing Manager, Rajasthan Techno Mobile, for the vote of thanks. Thank you, Devenji. Am I audible? Yes, you are audible, sir. Okay. Thank you, Devenji. First of all, I would like to say a very happy her day, because today, 2 years back, we had organized the mega marathon. Actually, but due to this COVID, we cannot do any kind of activities on the ground. So first of all, I would like to thanks to entire marketing of the internal hospital, especially Devenji, who has always remind me special days related to the health. So this could happen just because of him. I want to also thanks to the today's speaker, Dr. Premrathan Degawatji, who has explained in a very effective way. So we could understand the what all problems can we raise in the COVID time, especially in the COVID time, because we are all struggling. We are all basically facing this kind of problem due to COVID. We cannot reach out to the hospital, cannot visit to the hospital. So this kind of event will help us to to update ourselves. Especially people are eager to listen about the COVID updates, how this virus is changing its DNA and its structure. So of course we will keep on doing this kind of initiatives in future also, in community also. Thank you again for my all trade partners, all my techno team, and Sailendra sir, who has basically always encouraged me to conduct these kind of initiatives. Thank you so much. Thank you. Thank you, Mayankji. Thank you, Dr. Degawat sir. Thank you so much for your nice presentation.